Welcome, dear students, to our topic Writing Discussion in Experimental Research. Our discussion is about introducing the topic, then interpreting results with causation in mind. We will focus on internal validity. Then we will be exploring mechanisms and theoretical implications. Considering replicability and generalizability, we will go for limitations and alternative explanations. Then we will focus on implications and recommendations. Finally, going to suggestions for future research and a summary in the end. First of all, introduction. So, writing a discussion section for experimental research involves interpreting results, considering this study's implications, and situating findings within existing body of knowledge. So, experimental research में जब हम डिस्कशन लिखते हैं तो हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस को देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारा नया नॉलेज जो है, जो फाइंडिंग है, वो बॉडी ऑफ नॉलेज में कहाँ एडजस्ट होंगी और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं. Second is, compared to other types of research, experimental research discussions tend to focus more on causation, control, and the effectiveness of intervention. तो जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए डिस्कशन लिखते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस होता है काजेशन पर, यानी कौन सा वेरिएबल किस को काज कर रहा है और किस तरह से कंट्रोल हुआ एक्सटेनियस वेरिएबल का, बायसेस का, और कितना इफेक्टिव हमारी इंटरवेंशन रही. 3 is on the following slides, the slides which are coming, there is a breakdown of how to approach the discussion in experimental research, what makes it distinct from discussion in other types of research. So in the following presentation or talk, I'll be focusing on breaking down how experimental research actually differs from other types of research, and especially how discussion in experimental research differs from discussion from other types of research. Point 2 is interpreting results with causation in mind. So when we interpret results, we keep causation in mind, means how the independent variable actually affects the dependent variable. So first point is experimental research. Since experimental studies typically involve controlled conditions, the discussion should highlight the causal relationships discovered. क्योंकि एक्सपेरिमेंट होता ही काजेशन के लिए है, तो जो काज और इफेक्ट का रिलेशनशिप डिस्कवर हुआ है उस पर डिस्कशन होगी. उस डिस्कशन में we will emphasize whether the intervention produced a statistically significant effect and how this supports or challenges the initial hypothesis. तो हमने देखना है कि क्या इंटरवेंशन का इफेक्ट सिग्निफिकेंट था. अगर ये सिग्निफिकेंट था तो इनिशियल हाइपोथेसिस को इसने सपोर्ट किया या चैलेंज किया. अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च में इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स किस तरह की होती है, इसको अब हम देखते हैं. In experimental research, we focus on internal validity. We discuss how well study controlled for confounding variables and maintained internal validity. If random assignment or control groups were used, explain how these elements contributed to a robust design, minimizing bias and strengthening causal claims.
सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम ये बयान करते हैं कि हमने कैसे जो है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल किया, क्या ग्रुप में असाइनमेंट रैंडम थी और इसने कैसे हमें हेल्प की कि हम जो है वो कंफाउंडिंग वेरिएबल या अदर एलिमेंट्स को कंट्रोल करें और उससे कैसे हमारा जो डिज़ाइन है वो रोबस्ट हुआ, कैसे बायस मिनिमाइज हुए और किस तरह से इसने हमारे जो क्लेम्स हम कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन किया। तो ये सारी बातें डिस्कशन का पार्ट होती हैं जिनका फोकस इंटरनल वैलिडिटी होती है। जबकि अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम क्या करते हैं, क्योंकि without the ability to control for as many variables, discussion in non-experimental research should focus on potential sources of bias or unmeasured variables that may have influenced results impacting the validity of conclusions. सो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम उन वेरिएबल्स का जिक्र करते हैं जो हमारे रिजल्ट्स को बायस कर सकते हैं और जिनकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंस हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज के अलावा। तो वो सारे फैक्टर भी डिस्कशन का पार्ट बनते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जिसमें कंक्लूजन की वैलिडिटी जो है वो चैलेंज हो सकती है। 4 is exploring mechanisms and theoretical implications। जब हम जो डिस्कशन लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो उसमें क्या करते हैं, सिंस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑफन टेस्ट स्पेसिफिक थ्योरी और इंटरवेंशन, क्योंकि या तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं या किसी इंटरवेंशन के इफेक्ट को देख रहे होते हैं। The discussion should delve into why the observed effects occurred। तो हम ये देखते हैं कि जो observed change है जो डिपेंडेंट वेरिएबल में है वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, किसकी वजह से हुई है। For example, if a teaching intervention improved student engagement, explain how the intervention aligns with educational theories or principles and why it may have led to this result। तो अगर हमारी किसी टीचिंग स्ट्रेटेजी की वजह से, इंटरवेंशन की वजह से कोई चेंज आई है, स्टूडेंट की एंगेजमेंट बढ़ी है, तो हम ये बताते हैं कि कैसे जो स्टूडेंट की एंगेजमेंट जो है वो इस इंटरवेंशन की वजह से है और किस तरह ये जो चेंज है ये थ्योरी से अलाइंड है, टीचिंग के प्रिंसिपल से अलाइंड है और किस तरह से हम उस चेंज को इंटरवेंशन की वजह से करार दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें उस डिस्कशन का पार्ट बनती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ना हो, अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च हो, तो उसमें हम डिस्कशन का ये पार्ट कैसे लिखते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, the discussion may be broader, highlighting patterns or insights without fully committing to underlying mechanisms. Theories are often suggested as possible frameworks rather than concrete explanations। तो जब हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, तो हम उसमें कोई पैटर्न्स को, इनसाइट्स को बयान कर देते हैं। इस तरह से हम काजेशन की बात नहीं करते, और अगर किसी थ्योरी की बात भी करते हैं तो वो एक सजेशन के अंदाज में करते हैं और उसमें कोई कंक्रीट बात थ्योरी के बारे में नहीं करते हैं। पॉइंट 5 है जी, कंसिडरिंग रेप्लिकेबिलिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखें हम जो रेप्लिकेबिलिटी और जनरलाइजेबिलिटी की बात किस तरह से करते हैं। In experimental research, we emphasize the replicability of the study, discussing how the control conditions might allow for future studies to replicate findings। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें सबसे बड़ा काम उसकी रेप्लिकेबिलिटी होती है कि हमने एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया, अगर कोई और भी करेगा तो यही रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर उस एक्सपेरिमेंट को उन्हीं कंडीशन में बार बार किया जाए तो उसी को
हम रेप्लिकेबिलिटी कहते हैं और उसी नॉलेज को फिर साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। ऐसा नॉलेज जो रिपीट ना हो सके जिसकी, तो हम उसे साइंटिफिक नॉलेज फिर नहीं कहते हैं। वी डिस्कस हाउ जनरलाइज द रिजल्ट्स आर, यानी जाहिर है रिजल्ट्स को जनरलाइज करना है तो हम बात करेंगे ना ये किस तरह से जनरलाइज हो सकते हैं। Considering the sample and setting and identify any potential limitations in applying findings to other populations। हम ये वहाँ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इस साइज के सैंपल के जो रिजल्ट्स हैं वो लार्जर पॉपुलेशन पर अप्लाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते, किस हद तक हो सकते हैं, किन कंडीशन में हो सकते हैं, और उनको लार्जर पॉपुलेशन पर अप्लाई करने के लिए क्या हमें और करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि रेप्लिकेबिलिटी और जनरलाइजेबिलिटी का अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च की डिस्कशन में क्या मकाम है। ऑब्जर्वेशनल एंड क्वालिटेटिव रिसर्च शुड focus more on generalizability due to fewer controlled variables. Since replicability is often more challenging, discuss the unique context of findings and suggest how they may or may not apply in different settings। लेकिन ऑब्जर्वेशनल और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम जनरलाइजेबिलिटी को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रेप्लिकेबिलिटी ज़्यादा फोकस होती है और उसके बाद में जनरलाइजेबिलिटी आती है। लेकिन अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च में पहले जनरलाइजेबिलिटी आती है और बाद में रेप्लिकेबिलिटी आती है। लेकिन इसमें भी हम तवज्जो करते हैं कि हमारा कंटेक्स्ट क्या था और कंटेक्स्ट को डिटेल से बयान करते हैं। हम भी बयान करते हैं कि ये हमारी इस कंटेक्स्ट की जो फाइंडिंग्स है वो किस तरह के कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल हैं और किस तरह के कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं है। जी, तो छठे नंबर पर हम बात करेंगे लिमिटेशंस एंड अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस पर। तो लिमिटेशंस और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस कैसे की जाती हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो हम कहते हैं इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च acknowledge any limitations related to study design such as sample size or potential issues with measurement tools, but do so with the focus on any remaining sources of bias that could influence causal inference। क्योंकि हम लिमिटेशन को एक्नॉलेज करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, चाहे वो स्टडी डिज़ाइन में हो, सैंपल साइज में हो, मेजरमेंट टूल्स में हो। लेकिन ऐसा करते वक्त साथ साथ ये भी देखा जाता है कि अगर डिज़ाइन में कोई इशू है तो उसका इन्फेरेंस पर क्या असर पड़ सकता है, अगर कोई मेजरमेंट टूल में मसला है तो उसका क्या असर पड़ सकता है, और रिमेनिंग सोर्सेज ऑफ बायस अगर मौजूद होते हैं तो उनका क्या असर पड़ेगा हमारे काजल इन्फेरेंस पर, यह भी बयान किया जाता है। मसलन हम कहें कि हमारे टीचिंग मेथड की वजह से स्टूडेंट की एंगेजमेंट बेटर हुई है, लेकिन उस दौरान मौसम बड़ा अच्छा था और हो सकता है मौसम की वजह से बच्चे ज़्यादा एंगेज हो रहे हो स्टडी में, तो ये भी डिस्कशन का पार्ट बनाया जाता है। डिस्कस पॉसिबल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस स्पेशली इफ द रिजल्ट्स वर नॉट एज एक्सपेक्टेड। तो जो हमारी एक डिस्कशन है या गिवन एक्सप्लेनेशन है, उसके अलावा जो दूसरी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हैं उनको भी बयान किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्टूडेंट की एंगेजमेंट जो है स्टडी के साथ नए टीचिंग मेथड के अलावा माहौल में अगर कोई तब्दीली हो तो उसकी वजह से भी हो सकती है, तो ये भी वहाँ बयान कर दिया जाता है। अब हम आते हैं अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च के में। जब हम जो डिस्कशन लिखते हैं तो क्या करते हैं। इन नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज डिस्कशंस अराउंड लिमिटेशंस माइट फोकस मोर ऑन हाउ सैंपलिंग, self selection, a lack of control over variables could impact the findings, with less emphasis on causation and more on potential confounding variables। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के अंदर अगर कोई लिमिटेशन है सैंपलिंग के अंदर, जो सेल्फ सिलेक्शन ऑफ सैंपल के अंदर
और जो दूसरे वेरिएबल पर कंट्रोल ना होने की वजह से तो जो उसको को हम काजेशन की रोशनी में कम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल के हिसाब से ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि ये जो चेंज हमें वेरिएबल ए की वजह से नज़र आ रही है, ये ज़रूरी नहीं ए की वजह से हो, बी की वजह से होने के भी चांसेस मौजूद हैं। अब हम आते हैं जी जो 7 पॉइंट है, डेट इज इम्प्लीकेशन एंड रिकमेंडेशन। तो इसमें क्या फ़र्क है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर और अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हम पहले बात करते हैं। सिंस काजर रिलेशनशिप्स आर मोर लाइकली टू बी established in experimental research, so the discussion can include concrete recommendations for practice or policy based on evidence from the study। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च काजर रिलेशनशिप के लिए होती है, तो इसलिए हम इसमें रिकमेंडेशन ज़्यादा आसानी से दे सकते हैं जो कि पॉलिसी के लिए भी हों और प्रैक्टिस के लिए भी हों। In experimental research, we emphasize how these findings could be practically applied and suggest possible future directions for refining or scaling the intervention। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जब हम डिस्कशन लिखते हैं तो हम फाइंडिंग्स की प्रैक्टिकलिटी पे बात करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि जो फ्यूचर डायरेक्शन में यानी फ्यूचर में कैसे हम अपने इस रिफाइन कर सकते हैं अपने इंटरवेंशन की और किस तरह हम इसे बड़े पैमाने पर यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिस्कशन में। अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम क्या करते हैं? डिस्कशंस इन ऑब्जर्वेशनल और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च should make more cautious recommendations, acknowledging the need for further research, especially experimental studies to confirm findings। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशनल और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से फाइंडिंग्स आती हैं तो तब हम उनकी बेस पर रिकमेंडेशन करने में एहतियात करते हैं और हम कहते हैं कि जो हम दावा कर रहे हैं बेहतर यह है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से पहले उनको वेरीफाई कर दिया जाए। यानी एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसकी बेस पर तो हम रिकमेंडेशंस कर देते हैं, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशनल स्टडी है या एक्सप्लोरेटरी स्टडी है तो उसकी फाइंडिंग को हम कहते हैं कि वेरीफाई किया जाए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के जरिए। Recommendations are often more general or suggest new avenues for deeper investigation rather than immediate application। तो जब स्टडीज ऑब्जर्वेशनल हो, एक्सप्लोरेटरी हो, तो रिकमेंडेशन में हम उसको इन डेप्थ स्टडी करने की बात करते हैं, ना कि उसकी इम्प्लीकेशन की। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हम इम्प्लीकेशंस की रिकमेंडेशन देते हैं, जबकि अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम उसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से फाइंड करने की रिकमेंडेशन देते हैं। जो फाइंडिंग हमें जो ऑब्जर्वेशनल या डिस्क्रिप्टिव से आई हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको एक्सपेरिमेंटल से वेरीफाई किया जाए उनको अप्लाई करने से पहले। अब हम करते हैं 8वें नंबर की बात, सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं? In experimental research, we suggest further studies to address remaining questions, expand the intervention to different settings, and test additional variables। Experimental studies में जब हम recommendation कर देते हैं तो क्या करते हैं, जब हम suggest करते हैं तो क्या करते हैं? तो हम ये करते हैं कि इस इंटरवेंशन के जो साइज को बढ़ाया जाए, नई सेटिंग में किया जाए और वेरिएबल डाले जाएं। यू कैन आल्सो प्रपोज वेज टू इम्प्रूव द स्टडी डिजाइन बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड लिमिटेशंस। तो जो स्टडी का डिजाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में उसको इम्प्रूव करने की भी सजेशन हम दे सकते हैं। जबकि अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या करते हैं? We emphasize areas where future experimental research could confirm and build upon the findings। Other types of research में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए रिकमेंड करते हैं कि इन एरियाज पर अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ज़रूरत है।
Discuss potential new questions that arose from the exploratory or correlational nature of research and suggest methodologies that could provide further insights. तो जब हम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उनकी मेथडोलॉजीज को बेहतर बनाने की रिकमेंडेशन भी देते हैं और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने की रिकमेंडेशंस भी देते हैं। लेकिन हम जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च के बाद रिकमेंड करते हैं कि अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। प्लीज सजेस्ट न्यू टॉपिक्स फॉर अपकमिंग videos.